Students, today we are going to learn about haloalkanes and haloarenes. Means I am going to start class 12th chemistry, and that is from chapter number 10. Because we have just completed GOC, General Organic Chemistry, then it will be easy for you guys to understand this chapter, because these chapters are, that is, correlating. They have a correlation, means there is a sequence for that. So when you are understanding organic chemistry, then there you must have knowledge about the GOC, General Organic Chemistry. You know something about that chapter, and then you have knowledge about some how to name the compounds, what are alkyl groups, what are aldehyde ketones. If you know all these things, then you can easily understand this chapter also. So let us start with this chapter. We can divide this chapter like in this way. We can divide this chapter in this way. First part of this chapter, that is chapter 10. So in first part we will learn about, that is, classification of compounds. Second one, that is nomenclature. Then nomenclature, then properties, and this properties, and this property can be further classified into two types. That is physical property and chemical property. So we can divide this chapter into three parts, and one more, that is, we can say that one more part, and that is you can say that uses of haloalkanes and haloarenes. That is the last part. So we can divide this chapter into four parts. And what are those four parts? Classification of haloalkanes and haloarenes. Second, nomenclature, how we can give name to these compounds, organic compounds. Properties, what type of property they show. There are some physical properties and some chemical properties. This is important. And then uses. So we will start from classification. So before going for classification, first we have to understand that what is haloalkanes. Halo is related to halogen. And what is halogen? They are denoted by X, and X represents fluorine, chlorine, bromine and iodine. Halogen denoted by X, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Alkanes, you know about alkanes. Alkanes means saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon, that is known as alkanes. So when you have an alkane, the general formula for alkane is what? ये सब अभी आपने पढ़ा है, जनरल फॉर्मूला for alkane. General formula for alkanes, and that is what? RH. आप ये भी लिख सकते हो, आप represented CN H2N plus 2, and this is also simplest form RH. So when you have RH, this RH, and you are removing one hydrogen of alkane with the help of halogen, means you are removing hydrogen but adding halogen.
that may be fluorine, chlorine, bromine or iodine, then you get this RX. So this is alkane, बट आपने अल्केन से क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और हैलोजन ऐड कर दिया. सो दिस इज नोन एज अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड क्यों बेटा? क्योंकि जब अल्केन से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अल्काइल ग्रुप. और अभी मैं हैलोजन मैंने ऐड कर दिया, तो हैलोजन ऐड करने के बाद वो हैलोजन तो नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, हैलाइड. क्योंकि हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनके पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा वो, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड. सो अल्केन्स बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन से कितने हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन. सो वी गेट अल्काइल हैलाइड. बट जस्ट डिफाइन करने के लिए वी आर सेइंग दैट वी हैव एन अल्केन, we are replacing 1 hydrogen of alkane with the help of 1 halogen atom, that may be fluorine, chlorine, bromine or iodine. So that is known as alkyl halide or haloalkanes. Haloalkanes. But these haloalkanes या haloarenes, अब haloarenes को आप कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल सा, मैं अभी सिंपली इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि हैलोअरीन्स को आप कैसे बोलोगे कि सर ये हैलोअरीन क्या है. सो हैलोअरीन्स, अरीन्स का मतलब होता है दैट इज कंटेनिंग एटलीस्ट एरोमेटिक बेंजीन रिंग. अरीन्स का मतलब बेंजीन रिंग ही नहीं होता, बट हाँ एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेंजीन रिंग. अरीन्स का मतलब होता है बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, उसमें बेंजीन भी हो सकता है और उसका डेरिवेटिव हो सकता है. बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब और भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं. सो अगर आपके पास बेंजीन है और इस बेंजीन में भी कितने हाइड्रोजन होते हैं, इसमें 6, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने क्या ऐड कर दिया, आपने क्या ऐड कर दिया बेटा, आपने ऐड कर दिया इसमें हैलोजन. सो दिस इज नोन एज व्हाट, हैलोअरीन्स. फिर से यहाँ पे भी आपके पास अरीन्स है, अरीन्स का मतलब बेंजीन रिंग और इट्स डेरिवेटिव. तो हमने बेंजीन रिंग ले लिया सिंपली, और उस बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के उस पर क्या ऐड कर दिया, हैलोजन ऐड कर दिया है. सो दैट इज नोन एज हैलोअरीन्स. ठीक है, तो ये नॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया या आप इंफॉर्मेशन होगा अबाउट हैलो अल्कीन्स एंड अरीन्स. ठीक है, नाउ we are going to learn about how we can classify, जो मैंने फर्स्ट लिखा था, फर्स्ट पार्ट, that is the classification, how we can classify the haloalkanes and haloarenes. So let us start with that one. Classification. First one is classification. So when you are listening this chapter or watching on YouTube this chapter, then you may have your textbook. So the NCERT textbook is more than sufficient. First you have to be master of this textbook. Master of this textbook means you have to learn from this textbook, you have to solve number of questions. When your basics are clear, then you can go for any other textbook or reference book. But for reference books, don't learn again concept from that reference book. You just have to solve the questions. The more you are going to solve the questions, more variety of question you are going to solve, the more you are going to learn. That is the main part of learning. You have to apply the concepts. So you don't have to mug up all these things, because there are number of chapters, lot of concepts, lot of information, but all the information you cannot mug up and remember all the times. But when you will practice those concepts or things and questions, informations, then those information will get will exist in your subconscious mind when you will do the practice. Okay, so let us start with classification. So classification can be done on the basis of number of, first classification can be done on the basis of number of halogen atoms. So don't write definition on your notebook कि
सभी का डेफिनेशन आप उसे पूरी नोटबुक बना रहे हो बट कभी ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसी से पढ़ो, और कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे लिख लेना चाहिए, तो आप लिख लो। ठीक है, सब एकदम अच्छे से वो नोट बना के आप परेशान मत हो नोट्स बनाने के लिए। सो क्लासिफिकेशन फर्स्ट. So now we are going to classify haloalkanes और haloarenes on the basis of number of halogen atoms. मतलब कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें कितने हैलोजन एटम है, आपके पास कौन सा कंपाउंड हो सकता है, या तो हैलोअल्केन्स होगा या तो हैलोअरीन्स होगा। अब उस हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में कितने हैलोजन एटम है, उसके बेसिस पे आप इस इनको क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, लाइक दैट। सो किसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ halogen atoms, on the basis of number of halogen atoms, on the basis of number of halogen atoms. So example, you have this CH3X, मतलब आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें एक हैलोजन प्रेजेंट है, एक हैलोजन प्रेजेंट है, एक हैलोजन प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज मोनो। एक हैलोजन के लिए क्या लिखोगे आप? मोनो हैलो अल्केन्स, मोनो हैलो अल्केन्स। सो अगर आपके पास एक कंपाउंड है हैलो अल्केन्स है जिसमें केवल एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, दैट इज फॉर वन हैलोजन, दैट इज मोनो। हैलोजन के लिए एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, सो मोनो, मोनो हैलो अल्केन्स। सेकेंड वन, सेकेंड बेटा मोनो हैलो। दूसरा, इफ यू हैव C2X2, C2X2, ठीक है, मतलब आपके पास जो कंपाउंड है उसमें दो हैलोजन है, तो इसे क्या बोलोगे आप? सिंपल सा डाई हैलो अल्केन्स, डाई हैलो अल्केन्स। सिंपल, समझ में आ रहा है? थर्ड देखो बेटा, थर्ड देखो आप, थर्ड वन क्या है कि आपके पास ऐसा कंपाउंड है, जैसे CH2 लिख दिया मैंने, X, CHX, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2X। तो ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ हाइड्रोजन को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है ना। सो ये आपके पास कंपाउंड। अब आपके पास भी कंपाउंड, इसमें कितने हैलोजन दिख रहे हैं आपको? 3 हैलोजन। दिस इज व्हाट? ट्राई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन। सिंपल, getting the point? So on the basis of number of halogen atoms, a haloalkane can be classified as mono, di, tri, poly. पॉली हैलोजन बोलोगे तो मतलब पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब उसमें ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो कंपाउंड है, जो हैलो अल्केन्स है, उसमें कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है। सो इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन हैलोजन, देन मोनो, टू डाई हैलो, थ्री ट्राई हैलो, फोर टेट्रा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट we are going to talk about haloarenes. So you have this structure, you have benzene, and this benzene ring is containing only one what? Halogen. So this is what? Mono haloarene, mono haloarenes, mono haloarenes. Again you have this benzene ring, and this benzene ring is containing two halogens, two halogens. This is known as what? Dihaloarenes, dihaloarene, dihaloarene. Okay, dihaloarenes, like this trihaloarenes. Getting the point? So on the basis of number of halogen atoms, haloalkanes and haloarenes can be classified as mono, di,
tri, tetra, like that. So you guys are clear with this one, no? Okay. Next, compound containing. Now you have, so in this chapter we are going to learn about the monohalogen compounds. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में अब जो हम प्रोसीड करेंगे उसमें हम डाई ट्राई पे ज़्यादा हमारा नहीं है पूरा चैप्टर, ये हमारा ज़्यादा चैप्टर किस पे फोकस है, हेलो एल्केन्स पे या हेलो कंपाउंड्स पे. सो हेलो कंपाउंड्स कहने का मतलब वो अल्किन से भी हो सकता है, वो अल्किन भी हो सकता है. ठीक है, तो हेलो अल्किन्स और कंपाउंड्स कैन बी फर्दर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स. तो हम इसमें फर्दर सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. हम फिर से मोनो हेलो कंपाउंड्स, ये मोनो हेलो कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक ही हैलोजन प्रेजेंट है. अब उसको हम क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, कि आपका जो हैलोजन एटम है वो कौन से टाइप के कार्बन से, मतलब कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है. सो मोनो हेलो कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड or can be further classified according to the hybridization. मैं शॉर्टकट में ये लिख देता हूँ, यहीं तक रख देता हूँ. अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड. हैलोजन दैट इज X इज बॉन्डेड. ये पूरे लाइन क्लियर हुई आपको कि हेलो अल्केन्स कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स, ये देखो आप, मोनो हेलो कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड. मतलब आपका जो हैलोजन एटम है वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है, उसके बेसिस पे हम फिर से अपने कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, हेलो कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं. ठीक है, वन बाय वन करते हैं. सो नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट कंपाउंड containing sp3, you know about sp3cx bond, कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड मीन्स जो आपका X है या जो CX बॉन्ड का X है वो कौन से कार्बन से अटैच है, वो उस कार्बन से अटैच है जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज. बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है. पहले आपने क्या किया, आपने हेलो अल्केन्स या अरिन्स को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, तो वो मोनो डाई ट्राई हो गया. अभी हमें फोकस किस पे करना है, मोनो हेलो कंपाउंड्स पे. सो मोनो हेलो कंपाउंड्स कैन बी फर्दर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच योर हैलोजन एटम इज बॉन्डेड. मतलब हम मोनो हेलो कंपाउंड्स को फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, कि जो आपका हैलोजन है वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन से, किस टाइप के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है. तो आपका जो कार्बन है जिससे आपका हैलोजन अटैच है वो sp3 भी हो सकता है, वो sp2 भी हो सकता है. ठीक है, तो हम जो sp3 वाला है उसको पढ़ने वाले हैं. तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 क्या, cx बॉन्ड. मतलब जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन से अटैच है, जो sp3 है. एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल इसका पढ़ेंगे तभी तो क्लियर होगा. फर्स्ट वन क्या है, इसमें अल्काइल हैलाइड. इन अल्काइल हैलाइड हैलोजन इज बॉन्डेड टू व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. समझ में आया, मतलब आपके पास
ये है आपका अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है। इसमें अगर मैं X ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड। अभी बताया था आपको अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में जो ये हैलोजन है वो किससे अटैच होगा, ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 है। तो एग्जाम्पल लेते हैं तो और थोड़ा और इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाए। सो ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया RCH एंड X। अब देखो जरा आप, ये हैलोजन दिख रहा है, हाँ। कार्बन दिख रहा है आपको, यस। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। क्यों sp3 है, अभी हम लोगों ने वो चैप्टर किया था GOC कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कार्बन से, कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, सॉरी कार्बन के पास कितने सिंगल बॉन्ड है, 4। तो 4 सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp3। सो इन दिस एग्जाम्पल दिस हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, ओके। इसका अब दूसरा पार्ट देखो आप जरा, इसी में दूसरा पार्ट देखना आप, हाँ, इंटरेस्टिंग लगेगा। नाउ यू हैव R C R एंड यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे मैंने X। दिस हैलोजन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन, दिस इज व्हाट, sp3, ये भी sp3 है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका तीसरा कैटेगरी देखना आप, तीसरी कैटेगरी में देखो R C R R and X। अगेन दिस हैलोजन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन विच इज व्हाट, sp3। तीनों आपको क्लियर हो गया, पक्का। ये अब आप इसमें देखो, अब ये अल्काइल हैलाइड में 3 टाइप के आपके पास कंपाउंड हो गए और इन सभी में जो आपका हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो क्या है, sp3 है। बट आपने यहाँ पे 3 कैटेगरी लिख दी। आपको याद है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, यस। सो दिस कार्बन, let's focus on this carbon. This carbon is bonded to 2 hydrogen and again this R का मतलब कार्बन। सो कितने डिग्री का कार्बन है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। सो ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल एंड क्या, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब हम एक नया इसमें ऐड करते जा रहे हैं, नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, ध्यान देना, उसको कोरिलेट करते चलना है, नहीं तो फिर पता चला कि कुछ और उसमें इंक्लूड हो गया और आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ये जितने भी तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इसमें हैलोजन किससे अटैच है, एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 है। ठीक है, अब इसमें भी हम इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हमने कर दिया क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। वही आपको बता रहा हूँ कि ये कितने डिग्री का कार्बन है। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो आपके 2 R से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। तो ये 2 डिग्री क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और आप ये वाला देख लो, थर्ड वाला, यहाँ पे जो आपको कार्बन दिख रहा है ये कितने R ग्रुप से अटैच है, 3। तो ये कितने डिग्री का हो गया कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन है और किससे अटैच है, हैलोजन से। तो दिस इज व्हाट, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो योर alkyl halide or haloalkanes can be further classified into what, primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide, 1 degree, 2 degree or 3 degree. In this 1 degree, 2 degree or 3 degree, each halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom. Okay, getting my point? अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन। सो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था मोनो हैलो कंपाउंड्स। वी आर लर्निंग व्हाट, हाउ वी कैन क्लासीफाई मोनो हैलो कंपाउंड्स। सो मोनो हैलो कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन of the carbon atom from which halogen atom is bonded. So on the basis of this we can कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3। तो हम फर्स्ट इसमें पढ़ रहे थे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, मतलब एक हैलोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड दिस कार्बन इज व्हाट, sp3। इसमें हमने कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए बेटा, इसमें हमने 3 एग्जाम्पल। पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें पहला कौन सा पढ़ रहे हैं,
अभी जो हम पूरा पढ़ने वाले उस ये जो हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हम ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपका जो हैलोजन होगा वो एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp3 है। उसमें फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम? उसमें फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम कि अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या? अल्काइल हैलाइड का मतलब RX हो गया। अब RX में R क्या हो सकता है? हम उसको ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाले फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में और ये वाले फॉर्म में, तीनों में देख लो आप, ठीक है। और तीनों में आप देख के आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जो हैलोजन होगा वो एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp3 है। बट साथ साथ हम उसको फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं किसमें? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो पहले मुझे समझना है 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री वो कार्बन है जो केवल एक ही कार्बन से अटैच होता है डायरेक्टली। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन है जो 2 और कार्बन से अटैच होता है डायरेक्टली। और 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन है जो 3 और कार्बन से अटैच होता है डायरेक्टली। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री आप एक बार फिर से उसको अगर डाउट होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट था। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड यू हैव इसका बी पार्ट, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक। तो पहले मुझे क्या आना चाहिए? अलाइलिक ग्रुप आना चाहिए। अलाइलिक ग्रुप क्या होता है बेटा? ये आपका अलाइलिक ग्रुप है, देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश, ये आपका अलाइलिक ग्रुप है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, ये अलाइलिक है। अब अलाइलिक ग्रुप में, ये अलाइलिक ग्रुप हो गया। अब आप क्या करो, इस अलाइलिक ग्रुप में आपने ऐड कर दिया, इस अलाइलिक ग्रुप में आपने ऐड कर दिया है, इधर मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर आपने क्या ऐड कर दिया? X। सो दिस इज नोन एज व्हाट? अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड। बट इस अलाइलिक हैलाइड में जो आपने हैलोजन ऐड किया वो इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ से, पहले यहाँ से देख लो, कितने, एक बॉन्ड ये हो गया, किसी से अटैच होगा, जैसे यहाँ पे हैलोजन से अटैच कर दिया आपने, 2 हाइड्रोजन हो गया और एक, तो सभी क्या सिंगल बॉन्ड है। कितने सिंगल बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया? ये sp3। तो ये भी है एक टाइप आपके मोनोहैलो कंपाउंड्स का। मोनोहैलो कंपाउंड्स का ये दूसरा हो गया ना, मोनोहैलो कंपाउंड्स का ये दूसरा हो गया, जिसमें आपका जो एक अल्काइल हैलाइड हो गया और ये अलाइलिक हैलाइड है, जिसमें हैलोजन किससे अटैच है? एक कार्बन से अटैच है जो sp3 है। बट ये आपके अल्काइल ग्रुप से क्या है? डिफरेंट है। ये अल्काइल ग्रुप जैसा नहीं है, अलाइलिक ग्रुप है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अलाइलिक ग्रुप क्या है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब इसमें एक कार्बन है, एक सैचुरेटेड कार्बन है, ये सैचुरेटेड है, ये फिर क्या है? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ये कार्बन को क्या बोलते हैं हम? अलाइलिक कार्बन। ये पूरा CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये कार्बन जो, ये कार्बन, ये अलाइलिक कार्बन है। गेटिंग द पॉइंट? और इसी अलाइलिक कार्बन से कौन अटैच है? हैलोजन। इसी अलाइलिक कार्बन से कौन अटैच है बेटा? हैलोजन। हैलोजन अटैच। क्लियर हो गया? तो अलाइलिक, आप ज़्यादा उसको डेफिनेशन में मत जाओ, अलाइलिक ग्रुप पहचान लिया, अलाइलिक ग्रुप दिख रहा है आपको, बस उस अलाइलिक ग्रुप में जो कार्बन sp3 है उससे आपने क्या अटैच कर दिया? हैलोजन। दैट इज नोन एज अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट next we are going to learn about, that is the third part is of this C part, that is benzylic halides. benzylic halides you have, आप शायद भूल गए होंगे, ये बेंजीन है, इसमें मैंने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, तो याद आपको, दिस इज टोलुइन। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। और फिर इस मिथाइल बेंजीन में जो CH3 ग्रुप अटैच है उधर से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। सो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलने वाला बेटा? CH2 डैश।
and this is known as benzyl group. This is known as benzyl group. Okay, so this is benzyl group. So in this benzyl group, you are adding what? You are adding halogen. In this benzyl group you are adding halogen. So find out the hybridization of this sp3. So this halogen is bonded to this carbon, which is what? sp3 hybridized. But this group is different from what? अल्काइल ग्रुप. सो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये तीनों एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा, अल्काइल हैलाइड, फिर अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, इन तीनों में जो आपका हैलोजन था वो किससे अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से. उसमें कौन सा टाइप का बॉन्ड है? जो आपने लिखा था, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड. मतलब इन सभी कंपाउंड्स में जो CX बॉन्ड है, मतलब जिससे आपका वो कार्बन जिससे आपका हैलोजन अटैच है वो sp3 है. बट उसके पीछे वाले जो कार्बन है उनका नेचर क्या है? अलग अलग है. अल्काइल में वो सैचुरेटेड था, अलाइल में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, और बेंजाइल में क्या हो गया? बेंजीन रिंग आ गया. तो तीनों अलग अलग हो गया. ठीक है. हाँ, इसमें भी आप 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हो. जैसे आपने अल्काइल में बनाया था 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो. कैसे? देखो जरा, ईजिली आप बना सकते हो. ये पूरा क्लियर हो गया बेटा आपको? सो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज़ बेंजीन रिंग. ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, CH2 और यहाँ पे X. तो ये 1 डिग्री है ना, क्योंकि इससे केवल यही कार्बन अटैच है, मतलब यही कार्बन अटैच, एक कार्बन अटैच है. तो ये 1 डिग्री क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड. दूसरा बेटा यहाँ पे देखो, आप CH लिखा आपने और यहाँ पे भी R डाल दिया और यहाँ पे X. तो अगेन ये sp3 है. यहाँ पे भी ये कार्बन क्या है? sp3 है. यहाँ पे भी sp3 है. बट ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है. बट कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है. यहाँ पे कितना था? 1 डिग्री था. तो ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड हो गया. अब एक थर्ड कैटेगरी इसका, बस आपको हाइड्रोजन ही तो हटाना है. ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे C, यहाँ पे भी आपने R ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? X. ये क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया. हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3. हाँ, अब देखो ये R और देखो R, आपकी बुक में R लिखा होगा, R डैश लिखा होगा, R डबल डैश लिखा होगा, मतलब ये अल्काइल ग्रुप ही है. ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे आपने मिथाइल ले लिया, यहाँ पे इथाइल ले लिया, यहाँ पे प्रोपाइल ले लिया. तो ये सभी अल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है. तो R एंड R डैश का मतलब R एंड R डैश मे बी डिफरेंट और मे बी सेम. तो वो उन्होंने अलग अलग करके आपकी बुक में दिया है. तो आप उससे परेशान मत होना कि सर R डैश क्या है, फिर R क्या है, फिर R डबल डैश क्या है. वो सभी अल्काइल ग्रुप है. बट वो ये बता रहे हैं कि वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल में से आप कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी बना सकते हो. तो वो कंसिडर करने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट that is compound containing sp2CX बॉन्ड. मतलब अभी आपका जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कैसा होगा बेटा? जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा. ओके, इसमें 2 कैटेगरी है. इसमें कितनी कैटेगरीज है बेटा? 2. फर्स्ट, दैट इज विनाइलिक. विनाइल ग्रुप भी मैंने बताया, विनाइलिक हैलाइड, इसीलिए उसमें मैं बोल रहा था ये सब ग्रुप इंपॉर्टेंट है. विनाइलिक ग्रुप. सो विनाइलिक ग्रुप क्या होता है बेटा? ये देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन और एक क्या ऐड कर दिया? हैलोजन. ठीक है, हैलोजन. तो ये क्या हो गया आपका? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो जरा, सॉरी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X. बट ये जो आपने ग्रुप बना, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप. विनाइल, और विनाइल से मैंने क्या अटैच कर दिया? हैलोजन. तो दिस इज नोन एज व्हाट? विनाइलिक हैलाइड. विनाइलिक हैलाइड. ये विनाइल ग्रुप आपका, विनाइल ग्रुप क्या है? CH2 डबल बॉन्ड, एक मैं एग्जाम्पल, ये CH, फिर यहाँ पे मैंने X ऐड कर दिया. तो ये ग्रुप जो है वो विनाइल ग्रुप है.
और इस विनाइल ग्रुप में आपने क्या ऐड किया हाइड्रोजन, तो दिस बिकम्स व्हाट विनाइल व्हाट हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड. In this case, this halogen is bonded to this carbon, and this carbon is what? This carbon is what? sp2 hybridized. कैसे बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड में एक क्या होता है पाई और एक क्या होता है सिग्मा, और ये भी क्या है सिग्मा, और हाइड्रोजन वाला भी क्या होगा सिग्मा. सो मैं हाइड्रोजन वाला भी आपको एक्सपांड करके दिखा देता हूँ. ये भी क्या, ये H, तो ये भी क्या होगा सिग्मा. कितने सिग्मा हो गए 3 सिग्मा. 3 सिग्मा के लिए क्या होता है sp2 हैविंग नो लोन पे ओनली सिग्मा बॉन्ड्स. सो ये विनाइलिक हो गया, विनाइलिक हैलाइड. क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? ये हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड. हाँ, बट जो मैंने बोला था कि आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो आपकी बुक में ऐसे उन्होंने बॉन्ड लाइन वाले फॉर्म में भी दिया, तो वो भी आपको आना चाहिए. ठीक है बेटा. अगर मुझे इसका बॉन्ड लाइन बनाना तो कैसे बनाऊंगा, देखो जरा. ये ऐसे डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, सॉरी यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, और इससे मैंने क्या अटैच कर दिया एक्स. वो शो नहीं करना. अगर मैंने ऐसे लिख दिया और फिर ये बना दिया एक्स, तो मतलब ये क्या है विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड. दूसरा इसका देखो, इसका और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसी के विनाइल का, ये देखो, ये मैंने बनाया आपके लिए क्या साइक्लोहेक्सेन, दिख रहा है आपको? हाँ, साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया. ठीक है, तो ये क्या होगा साइक्लोहेक्सीन. अगर मैं साइक्लोहेक्सीन में जहाँ जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड वहीं पे क्या ऐड कर दूँ हैलोजन, तो ये भी क्या है विनाइलिक है. क्योंकि ये देखो आप, ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ये देखो यही तो है ना, समझ में आ रहा है? ये भी क्या है विनाइलिक हैलाइड है. क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे इस देखो यहाँ पे इन सभी प्लेसेस पे आप इन सभी प्लेसेस पे हाइड्रोजन ऐड कर लो, क्योंकि सबके हाइड्रोजन भी हो सकता है. देखो ऐसे हाइड्रोजन हो गया, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो बेटा, आर यहाँ पे भी आर ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आर ऐड कर दिया और यहाँ पे एक्स बना दिया, तो भी ये क्या है विनाइल ही है. मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए ना डबल बॉन्ड, और उसके बाद देखो हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, और इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है. इसलिए आपको समझना है कि विनाइल में क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. जो हैलोजन अटैच होता है वो किससे अटैच होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है. ओके, क्लियर बेटा? सेकेंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट था विनाइलिक हैलाइड. सेकेंड इज व्हाट अराइल हैलाइड. इन अराइल हैलाइड halogen is bonded to a carbon which is what sp2 hybridized. aryl halide, aryl halide का सिंपल सा एग्जांपल क्या है बेंजीन. ये ले लो बेटा बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी प्लेसेस पे हाइड्रोजन है. यस, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए. अब आपने क्या किया भाई, एक हाइड्रोजन हटाया होगा, हटा दिया, और क्या ऐड कर दिया होगा उसके प्लेस पे हैलोजन. ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है. तो ये जो कार्बन है जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और एक हैलोजन वाला बॉन्ड है. कितने बॉन्ड हो गए इसके पास 4 बॉन्ड, बट आउट ऑफ 4 बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा हो गया sp2. बट क्या ये विनाइल जैसा है? विनाइल में ऐसा रहता है, विनाइल में ध्यान देना, विनाइल में साइक्लोहेक्सीन ये देखो, ये बेंजीन रिंग तो है नहीं, ये साइक्लोहेक्सीन है जिसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड उसी से हैलोजन है, तो ये विनाइलिक ग्रुप है, ये विनाइलिक ग्रुप. बट यहाँ पे ये बेंजीन रिंग में है. हाँ, बेंजीन रिंग में भी ये कार्बन क्या है sp2 है, तो इसको क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स. सो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है बेटा? सो till now in this chapter we have learnt about how we can classify a haloalkane or haloarine. So haloalkane or haloarine can be classified on the basis of number of halogen atoms. So number of halogen atom के बेस पे क्या कर सकते हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, like that, और poly halogen. Again, now in this chapter we have to learn only about monohalo compounds. So monohalo compounds can be further classified according to the hybridization of carbon atom to which halogen atom is bonded. मतलब
आप मोनो हैलो कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड क्लासीफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन to which your halogen atom is bonded. Okay, so that classification can be in two types: compounds containing sp3CX bond and compounds containing sp2CX bond. So sp3CX bond में 3 पढ़ लिया आपने, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स. और sp2CX बॉन्ड में कौन सा पढ़ा अभी आपने? 2, विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड्स. तो अभी इसको रिवाइज करो आप और फिर मुझे आप बताना कि सर ये पूरा क्लियर हो गया. तो नॉमेनक्लेचर तो आप अभी पढ़ चुके हो, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको. सो दैट इज़ enough for today's lecture, and but you have to solve the question related to GOC, and you can send me the questions also. Okay beta, thank you.